Hello students, today we will study poultry. Now, before we deal with poultry, let us understand what exactly poultry is. The term itself you can recall, it is related with birds. And when I am talking about birds, only one thing clicks in your mind and that is hen and cock. मुर्गे मुर्गी ही आपके दिमाग में अभी क्लिक कर रहे हैं जब मैंने पोल्ट्री की बात की. Yes. In a very simple language, if I say what is poultry, अगर मैं बोलूं पोल्ट्री का मतलब क्या है, that means rearing of birds. birds को पालना उसको बोलते हैं पोल्ट्री, और जिस जगह birds को पाला जाता है that is termed as poultry farm. Is this clear? Now, when we are talking about poultry, hell lot of birds, different types of birds are being reared, but the most focused one is what? That is chicken. Cock and hen. Cock is male and hen is female. Look, as I told you, poultry is domestication of birds. Now, what birds is reared for? They are reared for flesh. बहुत पुराने टाइम से अगर मैं पोल्ट्री की बात करूं तो उसमें दो बर्ड्स मेनली इंक्लूड होती थी. फर्स्ट वॉज चिकन एंड अदर वॉज डक. क्लियर? नाउ, किस लिए? फॉर देयर फ्लैश. The term poultry used to refer mainly to flesh, but nowadays even eggs of birds are included. They have become the part of poultry. Now, when we are talking about chicken and duck, these are typically reared और बहुत पहले से इन्हें पाला जाता है. As I told you, chicken, the scientific name of chicken is Gallus. Now, cock is the male and hen is female. Second, duck, which is also scientifically termed as NS. So typically reared bird in poultry are chicken and duck, but sometimes even geese, turkey, quail, partridge, peafowl, different other birds are also reared. Now, I have told you about geese. Some of you must be knowing about what is geese. That is a bird. And one more is turkey. Turkey is the recently domesticated bird. सबसे लास्ट में जिस बर्ड को पालतू बनाया गया था, जिसको डोमेस्टिकेट किया था, that was turkey. Now, when we are talking about birds, जब अपन birds को पालने की बात कर रहे हैं, clear? So the place where we'll rear, that is termed as poultry farm. Bird की बात करेंगे तो when we rear, what we take into consideration? We take different types of case into consideration. First, flesh of bird. Bird का flesh अच्छा होना चाहिए. Clear? Now, bird, let's talk about the tendency of birds. जिन birds का flesh अच्छा होता है, वो अंडे कम देती हैं. They are laying less number of eggs. And those birds which lay more eggs, जो ज्यादा अंडे देती हैं, उनका फ्लैश की क्वालिटी कंपैरेटिवली कम अच्छी होती है. नाउ, तो पैरामीटर्स अभी देखेंगे. मीनवाइल, लुक, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोल्ट्री फार्म जैसे मैंने आपको बताया, जिस जगह बर्ड्स को पाला जाता है दैट इज पोल्ट्री फार्म. तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की बात करें, क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड होंगी. नाउ, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री. जब आप बर्ड्स को पाल रहे हैं तो बर्ड्स में कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बर्ड्स में डिजीज हुई तो वो दूसरे में कम्युनिकेट हो जाएगी और बहुत तेजी से स्प्रेड करेगी. तो जो बर्ड्स आप पाल रहे हैं दे शुड बी डिजीज फ्री. नेक्स्ट, suitable breeds. When we are talking about suitable breeds, what exactly our criteria is? अगर फ्लैश के लिए पाल रहे हैं तो अपने को उन ब्रीड्स को फोकस करना पड़ेगा विच आर हैविंग गुड फ्लैश. They are also termed as stable breed. If I say this particular chicken is stable breed, मतलब उसका फ्लैश की क्वालिटी ठीक है, that is palatable, tasty है. Now, when we are talking about egg laying, अगर अपने को eggs ही चाहिए तो वो पर्टिकुलर ब्रीड को रियर किया जाएगा. So here we have to decide. आपको फ्लैश के लिए चाहिए तो वी विल टॉक अबाउट ब्रॉयलर, जो मैं आपको टर्म बताऊंगा. और अगर अपने को एग्स ज्यादा चाहिए तो वी विल फोकस ऑन लेयर्स. नाउ, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन.
condition of poultry farm should be proper. It should be properly aerated, it should be properly ventilated, it should have proper light. पोल्ट्री फार्म एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनाया जाता है जिसके अंदर लाइट सफिशिएंट होनी चाहिए एंड वेंटिलेशन अगेन शुड बी सफिशिएंट. इज दिस क्लियर? वन मोर थिंग, सेफ. इट शुड ऑल बी कवर्ड विद नेट्स. जालियों से कवर्ड होना चाहिए ताकि कोई दूसरे, टॉकिंग अबाउट, न बिल्ली उसमें एंटर कर सके, न कोई दूसरा एनिमल एंटर कर सके, नॉट इवन स्नेक्स. अगर रिमोट एरिया में है तो जालियों की साइज ऐसी स्ट्रॉन्ग और छोटी होनी चाहिए कि छोटी सी जो मैंने आपको बताई है, लाइक स्नेक, यू कैन मैनेज टू एंटर इनसाइड, कांट एंटर. तो यहां आपने बात की बेटा प्रॉपर, और दूसरी बात की सेफ फार्म कंडीशन. नाउ प्रॉपर फीड, वाटर एंड हाइजीन. लुक, when we are talking about proper feed, birds की growth की बात करेंगे. when we are talking about poultry, जब आप birds की बात करेंगे, we are talking about chicken. Chicken is a good source of protein. It is a good source of protein. So when you have to develop birds, when you have to raise birds, you have to feed them with sufficient amount of protein. Their diet should be rich in protein. It should have calcium and other contents rich in. यहां पर फीड पर ध्यान देंगे, उनकी डाइट पर बहुत ज्यादा यू हैव टू फोकस. देन वाटर शुड बी अवेलेबल. जब उन्हें पानी पीना हो तब वो पी सकें. हाइजीन कंडीशन, जिस जगह आप पोल्ट्री फार्म की बात कर रहे हैं, दे शुड बी हाइजीनिक. टाइम टू टाइम सफाई होना जरूरी है. पानी वाली जगह भी टाइम टू टाइम साफ हो, और क्या होगा, पानी को भी बार बार चेंज किया जा सके. नाउ सो हाइजीन हैज टू बी मेंटेन्ड. वन इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ केयर. Look, the utmost important thing in case of poultry farm management is health care. You have to take care of birds. क्योंकि birds के अंदर अगर वायरल डिजीज हुई, बैक्टीरियल डिजीज हुई या कोई भी डिजीज हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वायरल डिजीजेस बर्ड्स के अंदर बहुत तेजी से स्प्रेड करती हैं. एंड आई सेड, अगर एक बर्ड बीमार हुई तो इफ डिजीज इज हाईली कॉन्टेजियस, और भी बहुत तेजी से क्या होगा, दे विल फॉल सिक. इज दिस क्लियर? Now, so in entire poultry, you have to take care of only few important things: their diet and hygiene. Second, proper ventilation should be there, and the important thing is disease free. अगर disease हो गई तो इतने मुर्गे मुर्गियां मारी जाएंगे कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे. Is this clear? Now, so when we are taking about health care, let us focus on a term called culling. We have to take care of birds. Birds पर you have to have a constant vigilance. Birds को बार बार observe करते रहते हैं. Look, birds are agile. They peck at each and everything. हर जगह वो चोंच मारती हैं खाने की चीज के लिए. But if a bird has turned drowsy or lethargic, अगर आपको लग रहा है बर्ड की एक्टिविटी कम हो गई, वो एक ही जगह बैठी हुई है, और आपको अपीयरेंस से पता लग गया वो बीमार है, then the only thing you can do is culling. What do you mean by culling? Look, removal of unwanted and sick bird from the group. उस बीमार बर्ड को जो आपने नोटिस किया है, the moment you notice, just remove it out from the group. उस ग्रुप से रिमूव कर दें ताकि और बर्ड्स के अंदर वो डिजीज फैलने से रोक सकें. This is termed as culling. This is termed as culling. Now, when we are talking about culling, मैंने क्या बोला? Removal of unwanted and sick bird from the group, and this is the important point. जब वायरल डिजीज आएंगी तब भी मैं इस टर्म के बारे में आपको बताऊंगा, दैट इज culling. Is this clear? Now, as I said, we have to take care of disease. Now, when we are talking about this, before I tell you about the details of disease, let's talk about breeds. Now, breeds, let's talk about indigenous and exotic. इंडिजिनस मीन्स स्वदेशी. जो बर्ड्स की ब्रीड इंडिया के अंदर मिल रही हैं वो इंडिजिनस, और जो फॉरेन वाली ब्रीड्स हैं उनको बोलेंगे एक्सोटिक. लुक, टॉकिंग अबाउट इंडियन ब्रीड्स, वन इज एसील. दिस इज द ब्रीड विच इज यूज फॉर कॉक फाइट. मुर्गे लड़ाने के लिए जो ब्रीड यूज होती है, दैट इज एसील. दिस इज यूज फॉर कॉक फाइट. One more is Ghegas, one more is Karaknath, one is Brahma. But we don't have to focus on these breeds. Look,
When we are talking about Indian breeds, they have good flesh. Indian breeds are good table breed. Indian birds का जो मांस होता है वो अच्छा है, लेकिन they have poor egg laying capacity. इसका मतलब अंडे वो कम देती हैं. दूसरी बात, they have growth rate very slow. When we are talking about growth, इंडियन मुर्गे मुर्गियों की ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली काफी स्लो होती है, और दूसरी बात वो अंडे भी कम देती हैं. बट एज आई सेड, दोज बर्ड्स विच हैव गुड फ्लैश दे ले लेस एग्स, एंड दोज विच ले मोर एग्स दे हैव रिलेटिवली लेस गुड फ्लैश. इज दिस क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सोटिक, one example is white leghorn. Color of egg is white and name of this breed is also white. So white leghorn is a layer. बर्ड की वो ब्रीड जो ज्यादा अंडे देती हैं उनको बोलते हैं लेयर. इंडियन मुर्गियां दे ले अबाउट 60 eggs in a year. But if I compare with white leghorn lays about 260 eggs in a year. So breeds of the birds which are grown mainly for their eggs are termed as layer. An example of layer is white leghorn. Now, you have heard the term broiler. कई जगह लिखा होता है broiler का मांस यहां मिलता है, मतलब वो मुर्गी जिसका मांस अच्छा होता है. Look, broiler, those birds which are grown for meat, इनकी ग्रोथ रेट हाई होती है, और दूसरी बात इनका फ्लैश भी अच्छा होता है. एंड द एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉयलर इज प्लायमाउथ रॉक. इसका मांस इतना ज्यादा रॉकिंग है, इसका फ्लैश इतना ज्यादा रॉकिंग है कि ये बेचारी ब्रीड कटने के लिए ही पाल ली जाती है. ये जब भी पलेगा उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा और इसे काट दिया जाएगा. नाउ इट हैज हाई ग्रोथ रेट, करीब 2.5 से 3 महीने में एवरेज 3 किलो के आसपास वजन का हो जाता है. तो इसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है और फ्लैश भी अच्छा है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लायमाउथ रॉक, दिस इज अ क्रॉस ब्रीड. दो अलग अलग ब्रीड को क्रॉस करके बनाया है. नाउ व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग अ क्रॉस ब्रीड, इट हैज द क्वालिटी ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स, और उसमें होता है हाइब्रिड विगर, दैट इज टर्म्ड एज हीट्रोसिस. हाइब्रिड विगर इज टर्म्ड एज हीट्रोसिस. तो जो कोई भी क्रॉस ब्रीड डेवलप होती है उसमें हाइब्रिड विगर या हीट्रोसिस होता है. इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. नाउ culling, as I told you, removal of unwanted and sick bird from the group is termed as culling. Now, as I said, in poultry you have to take care of their hygiene, and one more thing you have to take care is you have to take care of their disease. तो एक हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरी बात डिजीज का ध्यान रखना पड़ेगा. एंड द लास्ट इज ऑफ देयर फीड, खाना खिलाना. इज दिस क्लियर? बस 3 पैरामीटर्स का ध्यान रखो, प्रोडक्शन जबरदस्त होगा. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजीज, लेट्स टॉक अबाउट द डिजीज ऑफ पोल्ट्री, कॉमन डिजीज ऑफ पोल्ट्री. नाउ डिजीज कुड बी वायरल, disease could be bacterial, disease could be fungal, or it could be protozoan. Now, when we are talking about birds, let's focus on fowl pox. Fowl pox, as you all know, pox is a virus, so fowl pox is a viral disease. One more disease, bird flu, also termed as avian influenza. Bird flu is caused by a virus H5N1. This is termed as flu, and I hope all of you must be knowing pox and flu are virus. Hence, fowl pox and bird flu are viral disease. One more is Ranikhet. Ranikhet is also termed as Newcastle's disease. There is a city called Newcastle. Newcastle city में बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स हैं. बहुत पहले वहां पर एक डिजीज हुई जिसमें 1 लाख से ज्यादा मुर्गियां मारी गई थी. तो उस वायरल डिजीज का नाम ही क्या रख दिया? न्यू कैसल्स डिजीज, और एक और नाम दे दिया रानीखेत. तो न्यू कैसल सिटी में एक जगह है, उस प्लेस का नाम है रानीखेत. दे आर हैविंग लार्ज बिग पोल्ट्री फार्म्स. इज दिस क्लियर? सो फाउल पॉक्स, बर्ड फ्लू एंड रानीखेत आर वायरल डिजीज. नाउ बैक्टीरियल, फाउल कॉलेरा. कॉलेरा आपने ह्यूमन बींग्स में भी सुना है और बर्ड में भी होता है, दैट इज टर्म्ड एज फाउल कॉलेरा. फाउल कॉलेरा का वैक्सीन लुइस पास्चर ने बनाया था.
Pulorum coryza again are bacterial disease. Now talking about fungus. If you know aspergillosis fungus, so you can guess aspergillosis is fungal disease or viral? Of course, fungal. Toxin of aspergillus is termed as aflatoxin, hence aflatoxicosis is again a fungal disease. So aspergillosis and aflatoxicosis are fungal disease. Thrush and special type of pneumonia in birds which is caused by fungus is termed as Brooder's pneumonia. तो Brooder's pneumonia भी fungal disease है और thrush is again a fungal disease. Now, coccidiosis is a protozoan disease and this coccidiosis is caused by Eimeria. This disease called coccidiosis is caused by Eimeria. Eimeria एक प्रोटोजोआ है जो डिजीज कॉज करता है कोकिडियोसिस. सिम्टम्स आर अराउंड ब्लडी डायरिया. इसका मतलब लूज मोशंस बर्ड को हो जाते हैं, उसके साथ खून भी आने लगता है. नाउ एज आई सेड अर्लियर, focusing on what? Poultry means domestication of birds. Earlier, term poultry referred only to the flesh of birds like chicken and duck, but later on turkey, geese, etc. they were also included. Now, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की सप्लाई बढ़ाना जरूरी था, इसलिए न्यूट्रिएंट रिच चीजों के बारे में फोकस किया, तो एग पर ध्यान गया और एग का भी प्रोडक्शन अब काफी बढ़ाया गया है. तो इन इंडिया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोल्ट्री, वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू बोथ फ्लैश एंड एग्स ऑफ बर्ड्स. और पोल्ट्री में मेजर कंट्रीब्यूशन 90% तक का कंट्रीब्यूशन अकेला चिकन, मुर्गियों का है. बाकी बर्ड्स कंपैरेटिवली कम है. Now we'll study about silk. When we will talk about silk, you must know silk is obtained from an insect, that is silkworm. Silk किससे मिलेगा? That is silkworm. तो उसके बारे में भी थोड़ी बात अपन देख लेते हैं related with silk. Look, sericulture. Which culture? Sericulture. अगर एपीकल्चर, एपिस मतलब हनी बी का कल्चर होगा तो सेरिकल्चर सिल्क से रिलेटेड है कि नहीं? तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए किसको पालना पड़ेगा? सिल्क वर्म. रिमेंबर, सिल्क वर्म और सिल्क मॉथ एक ही बात है. बेटर टर्म सिल्क मॉथ होती है, लेकिन जो टर्म चली आ रही है वो सिल्क वर्म ही है. नाउ दिस इज एन इंसेक्ट, और अगर इंसेक्ट है तो यू ऑल नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें ट्रैकिया होगा, 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे, लेकिन इनकी बात अपने को नहीं करनी. नाउ व्हाट वी वांट इज सिल्क, और सिल्क की बात करोगे इसे आप जानते हो रेशम के नाम से जाना जाता है. लुक, लेट मी फोकस ओनली ऑन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा. ठीक. Silk is obtained from, remember, silk is obtained from cocoon/pupa. But silk is produced secreted by the caterpillar larva of silkworm. Silkworm का caterpillar larva क्या बनाएगा, क्या सीक्रेट करेगा? सिल्क. क्योंकि इसमें क्या मिलेगी? सिल्क ग्लैंड. Remember, suppose this is caterpillar larva. ये caterpillar larva है, ये ही केवल सिल्क बनाना जानता है, एडल्ट सिल्क बनाना नहीं जानता, केवल कैटरपिलर लार्वा ही बना सकता है. ठीक. ये कैटरपिलर लार्वा जो सिल्क वर्म का लार्वा है, ये अपने आसपास सिल्क की एक कवरिंग बना लेता है और इस कवरिंग को बोलते हैं कुकून. और आगे जाकर अंदर का अंदर ही, इस कुकून के अंदर, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये कैटरपिलर लार्वा कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्यूपा में. सो अभी मैंने आपको बताया सिल्क को बनाना या सीक्रेट करना किसको आता है? लार्वा को. लेकिन सिल्क मिलेगा किससे? आउटर कवरिंग से. सो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoon/pupa, but silk is produced or secreted by, तो आंसर है caterpillar larva of silkworm. caterpillar larva में कौन सी ग्लैंड मिलेगी? सिल्क ग्लैंड. नाउ नेचुरल सिल्क,
क्या ये प्लांट प्रोडक्ट है? नो। इंसेक्ट से मिला तो एनिमल प्रोडक्ट। नेचुरल सिल्क is protein in nature. It is protein in nature. It consists of two types of protein, fibroin and sericin. 80% of the protein is fibroin and remaining 20% is sericin. अगर सिल्क के थ्रेड को देखा जाए तो सिल्क के थ्रेड के आउटर कवरिंग पर जो प्रोटीन होगा वो सेरिसिन है और जो मेजर प्रोटीन बीच में होगा वो है फाइब्रोइन। ठीक। सो काम की बात, नेचुरल सिल्क या सिल्क की बात करोगे, दिस इज प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन इन नेचर, दो तरह के प्रोटीन है, फाइब्रोइन और सेरिसिन, जिसके बारे में आपसे अब नहीं पूछा जाता। ना आर्टिफिशियल सिल्क सुना होगा आपने, रेयॉन का नाम। आर्टिफिशियल सिल्क आपने सुना होगा रेयॉन। क्लियर? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, ये प्रिपेयर किया जाता है सेल्यूलोज से। सो रेयॉन इज एन आर्टिफिशियल सिल्क which is prepared from cellulose, और cellulose क्या है? कार्बोहाइड्रेट। So natural silk is protein and artificial silk is carbohydrate. Clear? Right now we have seen about silk. Now silk is obtained from, silk किस किस से मिलेगा उसके बारे में देखें। Look, before we talk about silk, एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं। Silk was discovered in China. अब उसकी कहानी की बात नहीं कर रहा हूं, किस किंगडम में किस क्वीन ने डिस्कवर किया। ठीक। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। फ्रॉम चाइना, चाइना से होते हुए ये फाइनली इंडिया की तरफ पहुंचा। जिस रूट से होता हुआ है उसको बोलते हैं सिल्क रूट, उसकी भी बात नहीं करनी। ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सिल्क का आज भी चाइना है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स में सिल्क का प्रोडक्शन है, बट सबसे ज्यादा द मैक्सिमम सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज कर्नाटका। बट लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्क, सिल्क मीन्स मलबेरी सिल्क। जब अपन सिल्क की बात कर रहे हैं और कुछ अलग बात नहीं कर रहे हैं, सिल्क का मतलब केवल मलबेरी सिल्क होता है, उसी को आप बोलते हो रेशम। नाउ मलबेरी सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिल्क इंसेक्ट कॉल्ड बॉम्बैक्स मूरी। बॉम्बैक्स मूरी जो सिल्क इंसेक्ट होता है, इसके लार्वे से आपको क्या मिलता है? सिल्क। नाउ व्हाई मलबेरी सिल्क इज टर्म्ड एज मलबेरी सिल्क? इसे मलबेरी सिल्क क्यों बोला जाता है? इसे चाइनीज सिल्क भी बोलते हैं। और मलबेरी सिल्क क्यों बोलते हैं? बिकॉज बॉम्बैक्स मूरी का लार्वा केवल मलबेरी लीव्स पर फीड करता है। इट फीड्स ओनली ऑन मलबेरी लीव्स एक्सक्लूसिवली। और लीव्स की अगर सप्लाई उसे देंगे और लीव्स पर अगर आप उसे फीड करेंगे तो नहीं फीड करेगा, वो केवल मलबेरी लीव्स खाता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मॉरस एल्बा। द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मॉरस एल्बा। सो फॉर सिल्क इंडस्ट्री, two important things are required. First, you have to keep it from disease free environment. You have to keep these silkworm disease free. इनको आपको डिजीज फ्री रखना है। और दूसरी बात, यू हैव टू फीड ऑन बेस्ट क्वालिटी ऑफ मलबेरी। सो द ग्रोइंग ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ मलबेरी इज टर्म्ड एज मॉरिकल्चर, बिकॉज जितनी ज्यादा सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी की लीव्स खिलाएंगे उतना ही ज्यादा और अच्छे क्वालिटी का आपको सिल्क मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दीज मलबेरी सिल्क और भी सिल्क हैं, बट दीज ऑल आर टर्म्ड एज नॉन मलबेरी सिल्क। नाम देख लें एक बार आप। एरी सिल्क, it is obtained from Attacus racinae. It is also obtained from Philosemia racinae. It feeds on castor leaves. So Eri silk is obtained from Attacus racinae and it feeds on castor leaves. Muga silk, इसको क्या भी बोलते हैं? Muga silk is also termed as Assam silk. It is obtained from Antheraea assama. Muga silk is obtained from Antheraea assama and it feeds on som and swallow leaves. तो इन लीव्स के ऊपर ये फीड करता है। So which is Assam silk? Answer is Muga silk. Muga silk is obtained from Antheraea assama, नाम से ही पता लगा। Now टसर सिल्क की बात करोगे, टसर सिल्क is obtained from Antheraea mylitta. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एंथेरिया माइलिटा और ये अर्जुन असन की लीव्स पर फीड करता है। क्लियर? सो एक मैंने आपको बताया
मलबेरी और दूसरा नॉन मलबेरी सिल्क, बट आवर कंप्लीट फोकस वुड बी ऑन मलबेरी। जब तक कुछ नहीं कहा जाए, सिल्क का मतलब होता है मलबेरी सिल्क, और इसी सिल्क को बोलते हो आप चाइनीज सिल्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मलबेरी सिल्क वर्म। लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ साइकिल, इट इंक्लूड्स एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसकी लाइफ साइकिल में क्या है? एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। लार्वा की बात करेंगे, दिस इज कैटरपिलर लार्वा। ये कौन सा लार्वा है? कैटरपिलर। जब कैटरपिलर अपने आसपास पूरा का पूरा सिल्क की कवरिंग बना लेगा, तो अब अंदर का अंदर सिल्क की ये कवरिंग, जो आप बाहर की कवरिंग देख रहे हैं, दिस इज टर्म्ड एज कोकून। द आउटर कवरिंग इज टर्म्ड एज कोकून। अपने आप को अंधेरी काल कोठरी में बंद कर लेता है। अंदर का अंदर इसमें मोल्टिंग होगी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्यूपा। किसमें कन्वर्ट होगा? प्यूपा। प्यूपा will finally get converted into adult. Now, the interesting thing we have to know about this is, we should know about is larva. The only feeding stage in the life cycle is larva. केवल larva ही खा सकता है। एग का कोई मतलब नहीं, प्यूपा अंदर कालकोठरी में बंद है और एडल्ट के माउथ पार्ट्स खाने लायक है नहीं। Is this clear? So the only फीडिंग स्टेज इन एंटायर लाइफ साइकिल इज लार्वा। सिल्क का सीक्रेशन केवल किसको आता है? सिल्क का फॉर्मेशन केवल लार्वा को आता है, एडल्ट को नहीं आता, एडल्ट नहीं कर सकता। तो जब लाइफ साइकिल की बात की है तो एक पॉइंट जरूर देखें। लुक, मेल एंड फीमेल। फीमेल साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक। इनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, 4 to 5 डेज, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 to 5 डेज के अंदर ये मिल गए तो मेटिंग होगी, ठीक। मेल की डेथ हो जाएगी, फीमेल अंडे देकर मर जाएगी, और अगर नहीं भी मिले तो 4 से 5 दिन के बाद ये अपने आप मर जाते हैं। तो एडल्ट लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट इज वेरी शॉर्ट। नाउ आफ्टर मेटिंग फीमेल लेस, सो फर्टिलाइजेशन की बात करोगे, मेटिंग हुआ, ये आपने बात की फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन? This is internal fertilization. Clear? Female lays about 400 to 500 eggs. Eggs के अंदर हैचिंग होगी, हैचिंग से जो लार्वा डेवलप होगा कैटरपिलर लार्वा होगा। कैटरपिलर लार्वा जैसे ही बनेगा, इट स्टार्ट्स फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स। ये मलबेरी लीव्स को खाता जाएगा, ठीक। दिस कैटरपिलर लार्वा इज अ वोरेशियस फीडर। ये बस दिन रात पत्तियां खाता जाएगा मलबेरी की। तो आपको बोला था, मलबेरी की जितनी सॉफ्ट क्वालिटी की लीव्स आप खिलाएंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी की लीव्स खिलाएंगे, उतना ही अच्छा सिल्क मिलेगा। नाउ सो दिस इज द फीडिंग स्टेज। इट अंडरगोज मोल्टिंग। फर्स्ट मोल्टिंग के बाद आप बोलोगे सेकेंड इंस्टार, सेकेंड मोल्टिंग के बाद बोलोगे थर्ड इंस्टार, थर्ड मोल्टिंग के बाद बोलोगे फोर्थ इंस्टार, और फोर्थ मोल्टिंग के बाद बोलोगे फिफ्थ इंस्टार। नाउ तो आफ्टर फोर्थ मोल्टिंग लार्वा इज टर्म्ड एज फिफ्थ इंस्टार। जब फिफ्थ इंस्टार बन जाएगा, देन इट स्टॉप्स फीडिंग। ये खाना पीना बंद कर देता है। आपने सही सुना, इट स्टॉप्स फीडिंग। लार्वा इज अ वोरेशियस फीडर, बट व्हेन लार्वा अंडरगोज फोर्थ मोल्टिंग, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिफ्थ इंस्टार। और फिफ्थ इंस्टार की बात करेंगे तो यहां पर इट स्टॉप्स फीडिंग। ये खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है। नाउ व्हाट इज डन? अब खाना पीना बंद करने के बाद ये अपनी गर्दन को रोटेट करना स्टार्ट करेगा, आउटसाइड टू इनसाइड गर्दन घुमाता जाएगा, घुमाता जाएगा, घुमाता जाएगा, और फाइनली 1 किलोमीटर लंबा एक कंटिन्यूअस धागा बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। सो स्पिन्स कोकून एंड दैट इज आउटसाइड टू इनसाइड। कैसे कोकून की स्पिनिंग होगी? बाहर से अंदर की तरफ ये गर्दन घुमाएगा। इट स्पिन्स कोकून आउटसाइड टू इनसाइड। क्लियर? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैटरपिलर लार्वा, फिफ्थ इंस्टार के अंदर सिल्क ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है, और अब माउथ के पास जो एक स्मॉल सी ओपनिंग है, उस ओपनिंग के थ्रू सीक्रेशन बाहर आता है। जैसे वो सीक्रेशन बाहर आएगा, बाहर आते ही इट बिकम्स ड्राई। तो सीक्रेशन आता जा रहा है, ड्राई होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और फाइनली क्या होगा? अपने आप को इट विल एनक्लोज इन अ केस दैट इज टर्म्ड एज कोकून।
तो कैटरपिलर लार्वा दिन रात 3-4 दिन तक अपनी गर्दन घुमाता जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 दिन, और यू कैन से विद इन 3 डेज कुकून का फॉर्मेशन होगा। कुकून के अंदर कंप्लीट एक धागा होता है, सिंगल थ्रेड इज, कुकून इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड, इट कुड बी 800 to 1200 मीटर लॉन्ग। तो ये आपने बात की, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ थ्रेड इन अ कुकून, अप्रॉक्सीमेटली 1000 मीटर, और यू कैन से 1 किलोमीटर। नाउ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कुकून, द लार्वा गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्यूपा, प्यूपा फाइनली gets converted into adult, but pupal stage में दो तरह के changes आते हैं। caterpillar larva, caterpillar larva में body is divided into head, thorax and abdomen। caterpillar larva में body is divided into head, thorax and abdomen। thorax में you will find 3 pair of legs, लेकिन abdomen में you will find 5 pair of legs। and as you all have studied एनिमल डाइवर्सिटी, तो आपको पता है इंसेक्ट में केवल 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, और वो भी केवल थोरेसिक लेग्स। तो दीज 5 पेयर ऑफ एडिशनल एब्डोमिनल लेग्स दे डीजनरेट, ये खत्म हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हिस्टोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको? हिस्टोलाइसिस। नाउ कैटरपिलर लार्वा डज नॉट हैव विंग्स बट एडल्ट हैज विंग्स। तो प्यूपल स्टेज की बात करोगे, इट विल अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, वन इज हिस्टोलाइसिस एंड अदर इज हिस्टोजेनेसिस। तो पहला हिस्टोलाइसिस और एक आपने बात की हिस्टोजेनेसिस। सो दोज लार्वल पार्ट्स और कैरेक्टर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड इन एडल्ट, दे आर डीजनरेटेड, वो खत्म हो जाते हैं, और जिनका रिक्वायरमेंट होता है दे विल अपीयर, वो अपीयर होंगे। तो यहां विंग्स का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं? नाउ एडल्ट अपने सलाइवरी ग्लैंड से लिक्विड सीक्रेशन रिलीज करेगा। ये लिक्विड सिल्क को यहां से गीला कर देगा, कुकून का एक पार्ट गीला हो जाएगा, और अपने माउथ पार्ट से ये कट करके बाहर निकल आएगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन टर्म दैट इज टर्म्ड एज स्टिफलिंग, एंड वन मोर इज रीलिंग। लुक, when we are talking about greed, there is no extent of greed of human being. Look, अगर 1 किलोमीटर लंबा धागा आपने ऐसे कुकून के अंदर है, और साइड से अगर आपने उसे काट दिया, उसके बाद अगर उस थ्रेड को पूरा ऑब्टेन करना चाहोगे, तो क्या 1 किलोमीटर लंबा धागा मिल जाएगा आपको? नो, यू विल फाइंड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ थ्रेड, बट यू कैन नेवर ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस लॉन्ग, वन सिंगल लॉन्ग थ्रेड। लुक, व्हाट टू डू? Human being had common sense and he has a common sense. Clear? So, the moment cocoon is formed, cocoon के formation के 2-4 दिन बाद cocoon को खोलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी के अंदर डाल दिया जाता है। तो पानी में, उबलते हुए पानी में डाल दिया, उसे उबाल रहे हैं, ठीक? तो इसकी वजह से cocoon के अंदर जो प्रेजेंट होगा प्यूपा, वो मर जाएगा। It cannot convert into adult। मर गया कि नहीं? ठीक। सो द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ प्यूपा इनसाइड द कोकून इज टर्म्ड एज स्टिफलिंग। अब उबालने से 2 काम हुए, एक प्यूपा मर गया, वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये कोकून कट नहीं हुआ, और कट नहीं हुआ तो अब आपको पूरा थ्रेड मिल सकता है। अब सिल्क का थ्रेड, थ्रेड से थ्रेड चिपका हुआ है, थ्रेड से थ्रेड चिपका हुआ है, जो मैंने आपको सिल्क बताया था, फाइब्रोइन सेरेसिन। तो सेरेसिन का आउटर पार्ट आपस में चिपका हुआ है। ड्यू टू बॉइलिंग वो चीज जो गमी सब्सटेंस होगा दैट विल बी रिलीज्ड, और फाइनली एक एंड पकड़ के खींचते जाएंगे और वो पूरा एक सिंगल लॉन्ग थ्रेड आपको मिल जाएगा। दैट इज टर्म्ड एज रीलिंग, द सेपरेशन ऑफ सिंगल कंप्लीट थ्रेड फ्रॉम अ कोकून। एक कोकून से 1 कंप्लीट सिंगल थ्रेड को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को बोलते हो आप रीलिंग। नाउ योर क्वेश्चन, अगर आपने कुकून्स को ही बॉईल कर दिया, मार दिए, तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे मिलेगी? तो एज आई सेड, ह्यूमन बीइंग में कॉमन सेंस पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लुक, अगर 1 लाख कुकून आपके पास हैं, तो 20,000 कुकून्स लाइफ साइकिल चलाने के लिए काम में लिए जाएंगे, केवल 80,000 को ही क्या किया जाता है? बॉयल। अब उन 20,000 से और प्रोडक्शन होगा, फिर उनमें से कुछ को किया जाएगा बॉयल। क्लियर? सो ये आपने बात की लाइफ साइकिल। नाउ
As I said about life cycle, it includes larva, pupa and adult. Now one more point, let's talk about disease. सिल्क इंडस्ट्री में दो ही बात का अच्छा ध्यान रखना है. यू हैव टू फीड ऑन द बेस्ट एंड सॉफ्ट क्वालिटी ऑफ मलबेरी लीव्स, और दूसरा यू हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिजीज. डिजीज से बचा कर रखना पड़ेगा. नाउ डिजीज की बात हुई तो लेट्स टॉक अबाउट पेब्राइन डिजीज. पेब्राइन डिजीज इज अ प्रोटोजोअन डिजीज. पेब्राइन डिजीज इज कॉज्ड बाय नोजिमा बॉम्बेसिस. नोजिमा बॉम्बेसिस एक प्रोटोजोआ है जो डिजीज कॉज करता है. एग्स गेट इन्फेक्टेड. जो एग्स होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं. दे आर इन्फेक्टेड विद दिस प्रोटोजोआ. दे बिकम स्टिकी और इनसे कैटरपिलर लार्वा का डेवलपमेंट हो नहीं पाता. एंड एज यू नो, नो कैटरपिलर नो सिल्क. नो कैटरपिलर लार्वा नो सिल्क. तो ये आपने बात की पेब्राइन. पेब्राइन किसी जमाने में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाली डिजीज थी. फ्रांस में अब सिल्क इंडस्ट्री अपने टॉप लेवल पर थी. दैट वाज एट इट्स कल्बिनेशन. बट एक अननोन डिजीज की वजह से टोटल प्रोडक्शन हर साल 50% कम हो रहा था. अगर ये डिजीज वहां कंटिन्यू रहती तो अगले 7-8 साल के अंदर पूरी की पूरी इंडस्ट्री वुड हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम फ्रांस. फ्रांस की गवर्नमेंट ने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी लुइस पास्चर से टू लुक इनटू द मैटर, और एक बार फिर लुइस पास्चर ने प्रूव कर दिया. ऐसे ही लुइस पास्चर नहीं है, दैट जीनियस. उन्होंने बताया पेब्राइन डिजीज के बारे में. डिजीज जब कंट्रोल हुई, प्रोडक्शन वापस रिगेन हुआ. एक डिजीज मस्करडाइन. मस्करडाइन इज अ फंगल डिजीज. मस्करडाइन फंगल डिजीज है. एक है मैगट. मैगट की बात करोगे तो फ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं? मैगट. फ्लाई है, उसका नाम है ऊजी फ्लाई. साइंटिफिक नेम है ट्राइकोलाइगा सॉर्बिलेंस. फ्लाई का नाम है ऊजी फ्लाई और साइंटिफिक नेम है उसका ट्राइकोलाइगा सॉर्बिलेंस. कोई नहीं पूछेगा, बस सुन लो. नाउ फ्लाई आती है कैटरपिलर की बॉडी के ऊपर, अंडे देती है और चली जाती है. इन अंडों से मैगट लार्वा डेवलप होता है. मैगट लार्वा फीड्स ऑन द बॉडी ऑफ कैटरपिलर लार्वा. कैटरपिलर लार्वा ही मर गया तो सिल्क कैसे मिलेगा? पॉलीहिड्रोसिस ग्रेसिरी, दीज आर वायरल डिजीज. एंड फ्लेचरी की बात करोगे, दिस इज बैक्टीरियल डिजीज. तो यहां अपन ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की, दैट इज डिजीज. सो आई टोल्ड यू अबाउट लाइफ साइकिल एंड ऑल, बट सिल्क इंडस्ट्री के अंदर सेरीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई. सिल्क इज ऑब्टेन्ड बाय कोकून, बट सिल्क इज प्रोड्यूस्ड ओब्लिक सीक्रेटेड बाय कैटरपिलर लार्वा. और उसमें कौन सी ग्लैंड? सिल्क ग्लैंड्स होती हैं. क्लियर? Now we will study lac culture. As I said earlier, we have studied about apiculture. Apiculture is related with honeybee. So I hope lac culture would be related with lac insect. Now, when we are talking about lac insect, let's know about the quality of lac insect and habit of the lac insect. Look, जब लैक इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए. लुक, लैक इज एन सीक्रेशन ऑफ इंसेक्ट. इंसेक्ट का सीक्रेशन है, मतलब लैक एक एनिमल प्रोडक्ट है. नाउ लुक, when we are talking about lac culture, यहां पर what we will do, we will rear lac insect. The name of lac insect, the scientific name of lac insect is Lessifer lacca, and its earlier name, old name was Tecardia lacca. Now, so rearing of what? Lac insect. The scientific name of lac insect is Lessifer lacca. Look, lac insect grows on the host plant. ये होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, वहां से इट विल टेक प्लांट सेप. ये प्लांट सेप को सक करेगा, बॉडी में मेटाबोलाइज होगा, और इसकी बॉडी का जो लैक इंसेक्ट है उसकी बॉडी का जो एब्डोमेन पार्ट है उसके लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होती है लैक ग्लैंड. वो लैक ग्लैंड सीक्रेशन रिलीज करेगी और इंसेक्ट की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है. इंसेक्ट लैक सीक्रेट करता हुआ ही मर जाता है. उसके बाद ये आउटर केवल कवरिंग ही बचती है, इंसेक्ट तो मर जाएगा. ना इसको स्क्रैच कर लिया जाएगा, इसको प्यूरिफाई करेंगे, उसके बाद जो आपको मिलेगा उसको बोलोगे लैक.
लैक की बात कर रहा हूं, हिंदी में बोलते हैं लाख। ये कोई नई बात नहीं है। इफ यू हैव हर्ड अबाउट महाभारत, तो वहां पर आपने लाक्षागृह का नाम सुना था, वो इसी लाख की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो महाभारत के टाइम पर इतने हजार साल पहले भी एक घर बनाया गया था, तो लाख का कितना बड़ा प्रोडक्शन चाहिए होगा लाक्षागृह बनाने के लिए। इज दिस क्लियर? नाउ when we are talking about lac, India is the largest producer of lac in the world. मिल्क का प्रोडक्शन हो चाहे लैक का प्रोडक्शन हो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और इंडिया के अंदर कई स्टेट्स के अंदर इसका प्रोडक्शन है, बट जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है दैट इज इन झारखंड। नाउ लुक, सो राइट नाउ अपन ने बात की थी लैक कल्चर की। यहां मैंने बताया था लैक इंसेक्ट, आपको बताया था इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है झारखंड। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैक, तो मैंने बोला अगर इंसेक्ट की बॉडी की बात करोगे, इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट पर ये लैक ग्लैंड होती है। लुक, और इसका सीक्रेशन होता है जो इंसेक्ट की बॉडी को फाइनली पूरा कवर कर लेगा, जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लुक, लैक इज अ रेजिनस सीक्रेशन। आई रिपीट, लैक इज अ रेजिनस सीक्रेशन which is secreted by the lac gland, which is secreted by the lac gland, which is also termed as dermal gland. It is present in the last segment of lac insect. तो ये जो लैक ग्लैंड है, ये जो डर्मल ग्लैंड है, लैक इंसेक्ट के लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, और ये एक रेजिनस सीक्रेशन है। कौन सा सीक्रेशन है? रेजिनस सीक्रेशन। Hey, this is a secretion of gland, this is not an excretory waste. ये excretory waste नहीं है क्योंकि ये gland का secretion है। I hope you got the point. Now, when we are talking about lac, the main constituent of lac is resin. The main constituent of lac is resin. Percentage of resin, it may vary from 68 to 90%. Percentage of resin in lac, it may vary from 68 to 90%. Now, let's talk about lac insect. Lac insect, as I told you, scientific name is Laccifer lacca. It grows on the host plant. ये host plant के ऊपर grow करता है, उससे plant sap suck करेगा। तो जब plant sap को suck कर रहा है तो plant को कोई फायदा नहीं कर रहा, इसलिए lac insect is parasite on the host plant. I repeat, Laccifer lacca, lac insect grows on host plant, और host plant के साथ इसकी relationship कैसी है? Parasitic, क्योंकि ये plant sap को suck करता है। अगर एक छोटी सी ब्रांच के ऊपर बहुत सारे लैक इंसेक्ट हो तो पेड़ की वो ब्रांच कभी कभी सूख भी जाती है, इतना ज्यादा ये नुकसान कर देता है। इसलिए लैक इंसेक्ट को जिस ट्री पर एक साल ग्रो किया जाता है, अगले साल वापस क्रॉप उस ट्री पर नहीं ली जाती, एक साल का प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है ताकि प्लांट अपने डैमेज को रिकवर करे, जस्ट टू रिकवर द डैमेज कॉज्ड बाय दीज पैरासाइट्स टू दैट पर्टिकुलर ट्री। इज दिस क्लियर? नाउ, सो टॉकिंग अबाउट होस्ट प्लांट, रिलेशनशिप वॉज पैरासिटिक। इज दिस क्लियर? नाउ, the quality of lac, as you can see, it depends on, the quality of lac depends on the nature of host plant. Beta, I repeat again, the quality of lac depends on the nature of host plant. जिस प्लांट के ऊपर आप इसे ग्रो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है लैक की क्वालिटी। नाउ, बहुत सारे लिस्ट में आपके पास नाम आएंगे, बेर, पलाश, कुसुम, मैंगो, फिग, कई पे ऊपर ग्रो कर सकते हैं, बट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लैक इज ऑब्टेन फ्रॉम बेर एंड पलाश। बेर और पलाश ट्री के ऊपर अगर आप इनको ग्रो करोगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ लैक मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था द क्वालिटी ऑफ लैक डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ होस्ट प्लांट।
The main constituent of lac is resin. तो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? रेजिन. इज दिस क्लियर? नाउ जिन ट्रीज के ऊपर आप इनको ग्रो करते हैं उन ट्रीज की ब्रांचेस को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है ताकि लैक इंसेक्ट को यहां से मूव करना हो तो इस ट्री की तरफ चला जाए और यहां से मूव करना हो तो इधर की तरफ चला जाए. तो इन ब्रांचेस को जब आप ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. सो लुक, ये ट्री की ब्रांच, इसके ऊपर कौन ग्रो कर रहा है? लैक इंसेक्ट. कौन कर रहा है? लैक इंसेक्ट. लैक इंसेक्ट के लास्ट सेगमेंट पर आपको क्या मिलेगी? लैक ग्लैंड. और लैक ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वही क्या है? लैक. लैक ग्लैंड को आपने क्या भी बोला था? डर्मल ग्लैंड. क्या बोला था? तो लैक क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट है? नो. ग्लैंड का सीक्रेशन है तो एक्सक्रीशन तो हो ही नहीं सकता वो. क्लियर? नाउ इन ट्री की ब्रांचेस को आपस में ज्वाइन कर दिया. इसके लिए मैंने एक टर्म आपको बताई थी, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. क्या टर्म मैंने आपको बताई? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. क्लियर? नाउ लैक इंसेक्ट विल सक द प्लांट सैप. ठीक, और बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा और फाइनली ये इसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे किससे कवर हो जाएगी? लैक से. बट एक ओपनिंग बचेगी ताकि, क्लियर, यहां पर एक पर्टिकुलर ओपनिंग बची रहेगी. लुक, दिस इज टर्म्ड एज लैक सेल. इसी को बोलेंगे रेजिन चैम्बर. दिस इज टर्म्ड एज लैक सेल और इसी को क्या बोलेंगे अपन? रेजिन चैम्बर. इज दिस क्लियर? लैक सीक्रेट करती मैक्सिमम लैक सीक्रेट फीमेल करती है. मेल के कंपोजिशन की बात करेंगे, मेल का जो परसेंटेज सीक्रेशन होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है. मेल लैक इंसेक्ट इतना लैक सीक्रेट करेगा तो फीमेल रिलेटिवली उससे ज्यादा सीक्रेट करती है और फीमेल तो लैक सीक्रेट करती ही फाइनली मर जाती है. इज दिस क्लियर? आफ्टर द डेथ ऑफ द इंसेक्ट ओनली लैक सेल और रेजिन चैम्बर इज लेफ्ट. इसको स्क्रैच कर लिया जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था. उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है, इंप्योरिटीज रिमूव की जाती है और फाइनली यू ऑब्टेन लैक. ये वही लाख है जो लाक्षागृह वाला मैंने आपको बताया था. और अगर आपने सुना हो लाख की चूड़ियां बनती है, बैंगल्स, यस और नो, वो यही लाख है. दैट इज लैक. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैक इंसेक्ट, तो लैक इंसेक्ट एक प्रॉपर्टी शो करता है दैट इज टर्म्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब एक्सटर्नली ही मेल और फीमेल को देखकर आप रिकॉग्नाइज कर लें कि ये मेल और ये फीमेल है. So what do you mean by sexual dimorphism? When you externally observe the male and female, you can easily distinguish this is male and this is female. जैसे एक lion, you can distinguish a male lion from a female क्योंकि मेल के आसपास, मेल लायन के गले के आसपास बाल होते हैं. That is termed as mane, but that is absent in female lion. Is this clear? So now talking about sexual dimorphism. As I said, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ठीक, जब मेल और फीमेल को आप एक्सटर्नली ऑब्जर्व करें और पता लग जाए, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि ये मेल और ये फीमेल, देन दैट इज टर्म्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैक इंसेक्ट, इन मेल लैक इंसेक्ट, विच इंसेक्ट? मेल लैक इंसेक्ट, you will find wings, but as you can see wings are absent in female. Second point, in male head, thorax and abdomen are easily distinct. Head, thorax and abdomen are distinct, but in case of female, head, thorax and abdomen is not distinct. Next, female secretes more amount of lac. Female secretes more lac as compared to male lac. So female lac insect is secreting more lac, और मेल की बात करोगे तो कम. मेल लैक इंसेक्ट का जो रेजिन चैम्बर होता है उसके दोनों तरफ से ओपनिंग खुली होती है, बट इन केस ऑफ फीमेल ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट. इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, ब्रीफ वन. मेल एंड फीमेल, आफ्टर कॉपुलेशन, female lays 200 to 500 eggs in the resin chamber. In the resin chamber. Now, eggs undergo hatching and the larva which develops is termed as nymph.
रेजिन चैम्बर में एग लेइंग हुई, अब इसमें क्या डेवलप हुआ, निम्फ। निम्फ फीमेल के रेजिन चैम्बर को छोड़कर चला जाएगा, इट विल लीव द रेजिन चैम्बर और कहां चला जाएगा, सॉफ्ट सी ब्रांच के ऊपर, ऑन अ सॉफ्ट ट्विग। इज दिस क्लियर, स्मॉल एंड सॉफ्ट ट्विग। ना वहां जाने के बाद इट विल स्टिक देयर, वहां नेक सेप को सक करेगा। ना विद द लैप्स ऑफ टाइम इट विल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, अब लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा और फाइनली 70% फीमेल्स और 30% मेल्स डेवलप होंगे। 70% फीमेल एंड 30% मेल। एक मेल बहुत कई सारी फीमेल्स के साथ कॉपुलेट करता है। इज दिस क्लियर? एज आई सेड, मोर लैक इज सीक्रेटेड बाय फीमेल। फीमेल लैक सीक्रेट करती करती ही मर जाती है। इज दिस क्लियर? नाउ important points, lac is a resinous secretion, it is not an excretory waste. The quality of lac depends on the nature of host plant. The main constituent of lac is resin. Lac insect is parasite on host plant. The life cycle complete within 6 months. Now, there are many terminologies, but right now it's of no use. What is button lac, what is Kusumic lac, and all. Clear? Now, when we are talking about lac, let's talk about it. As I said, bangles, लाख की चूड़ियां बनती है कि नहीं? Lac is also used in cosmetics. It is used in varnish. It is used in polish. Lac dye, preparation of gramophone records. पुराने टाइम पर अगर आपको याद हो या थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। इन सब में कंट्रीब्यूशन किसका आता है? लैक। सो दीज आर द यूज ऑफ लैक। सो एज आई सेड, आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल विल ले 200 to 500 एग्स। एग्स में हैचिंग होगी, क्या रिलीज होगा? निम्फ। निम्फ फीमेल के रेजिन चैम्बर को छोड़कर चला जाएगा और सॉफ्ट सी जो ट्विग्स होती हैं, स्मॉल सॉफ्ट ट्विग्स ब्रांचेस, उनके ऊपर जाकर सेटल हो जाएगा। ठीक, धीरे धीरे फाइनली जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो 70% फीमेल डेवलप होंगी और 30% मेल डेवलप होंगे। इज दिस क्लियर? सो दिस वाज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट लैक।